Hello students and welcome to this third lecture on chemical reactions and equations. I hope you have already gone through the first two lectures of this series and things covered so far in those lectures are clear to you. In this lecture we will look at final classification of chemical reactions. Okay? Now reactions can also be classified as oxidation and reduction reaction. We looked at earlier classification, one which was based on change in energy, one which was based on type of product being formed, and one which was being based on rearrangement of atoms. Now let's look at what oxidation and reduction is all about, and it will help us to understand why this classification of reactions. So first we will look at oxidation reactions. सबसे पहले हम oxidation reaction से start करते हैं. So what is oxidation? Now oxidation can be defined in many ways. Specifically there are three ways of defining an oxidation reaction or oxidation. Now these are: first, oxidation is anything which involves gain of oxygen. Second, it can also be defined as loss of hydrogen. And third, it can be defined as loss of electrons. So any reaction जिसमें gain of oxygen हो रहा हो और loss of hydrogen हो रहा हो या loss of electrons हो रहा हो is termed as oxidation reaction. Now as far as your current class is concerned, we will be more interested in first two definitions of oxidation. 10th में हम केवल gain of oxygen और loss of hydrogen के terms में बात करेंगे. Loss of electrons, gain of electrons, this is something which we will touch in class 11th when we will do redox reactions. So for class 10th, oxidation, we will focus on gain of oxygen and loss of hydrogen. But as far as definition is concerned, you should write or you should mention all three aspects of oxidation. Okay? So oxidation can be defined as A, gain of oxygen, B, loss of hydrogen, and C, loss of electrons. Okay? So let's move ahead. Now we will look at oxidation in terms of gain of oxygen. So one of the definitions which we saw of oxidation was gain of oxygen. Now a substance which gains oxygen is said to be oxidized. Oxidize क्या हुआ? जो substance oxygen gain कर रहा है वो oxidize हो रहा है. तो किसी भी chemical reaction में हो सकता है कोई substance oxygen gain करे, हो सकता है कोई substance oxygen lose करे. तो जो substance oxygen gain करेगा उसको हम बोलेंगे कि वो oxidize हो रहा है. ठीक है? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. Now this particular reaction we have seen earlier as well. कहां पे? Right, when we are discussing combination reactions of burning of magnesium ribbon. So it is the same reaction. Now look at this reaction. In this reaction, magnesium is reacting with oxygen or magnesium is combining with oxygen to give you magnesium oxide. So in effect, magnesium has gained an oxygen atom, right? Here is magnesium and here this magnesium atom has gained an oxygen atom. So because magnesium has gained an oxygen atom, hence we say magnesium is oxidized. Clear है? जो भी substance oxygen gain करेगा वो oxidize हो रहा है. So in this reaction, magnesium is getting oxidized. In fact, all the combustion reactions are oxidation reaction. तो अगर एग्जाम में आपको ये रिएक्शन देते हैं और पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, सो यू कैन मेंशन और रादर यू शुड मेंशन that
It's a combination reaction as well as oxidation reaction. Okay? Okay, let's look at another example. So now in this example, copper which is shiny brown in color, कॉपर वायर हमने देखा है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वायर हम लोग घर में यूज करते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ कॉपर. अब वो तो डिफरेंट कलर्स में आते हैं बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, बट अगर आप उस इंसुलेशन को हटाते हो तो नीचे जो हमें ब्राउन कलर का वायर दिखता है दैट इज कॉपर. सो कॉपर विच इज शाइनी ब्राउन ऑन हीटिंग ऑक्सीडाइजेस टू ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड. कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है. रिमेंबर दिस चेंज इन कलर, इसके बेसिस पर ही क्वेश्चन आ जाता है. So copper which is shiny brown on heating oxidizes to black colored copper oxide. Let's write down the chemical reaction for this. So this is the chemical reaction. Copper is combining with oxygen to give you copper oxide. Again, combination reaction. Two or more substances are combining to give one single substance. Now this is also an oxidation reaction. How? It's clear, copper is gaining an oxygen. So since copper is gaining an oxygen, we say copper is oxidized. Okay, and the color changes from shiny brown to black. Clear hai? Again, this is an example of combination reaction. This is a combustion reaction and this is an oxidation reaction, just like burning of magnesium ribbon. So I hope oxidation reactions are clear to you. अब हम देखेंगे what are reduction reactions. अगर oxidation clear है तो reduction is extremely easy, क्योंकि oxidation का उल्टा reduction. Reduction is just the reverse of oxidation. Now, just as oxidation was defined in three different ways, we can define reduction also in similar fashion. So reduction can be defined as either loss of oxygen, important, loss of oxygen. Oxidation में क्या था? Gain of oxygen. और gain of hydrogen, again reverse of oxidation. Oxidation में क्या था? Loss of hydrogen. और रिडक्शन के लिए होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो क्लियरली रिडक्शन इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, सो वंस मोर, रिडक्शन इज डिफाइंड एज ईदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And for class 10th, we will be interested more on first two definition of reduction. तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन में कुछ एग्जांपल्स देखे थे, let's look at some examples for reduction as well. Now, we will be focusing mainly on this definition of reduction, which talks about reduction in terms of loss of oxygen. Okay? So we will be focusing on reduction in terms of loss of oxygen and maybe one or two cases where gain of hydrogen is also involved. Now let's look at this reaction. Now in this particular reaction, zinc oxide reacts with carbon to give you zinc and carbon dioxide. Okay? Zinc oxide किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन के साथ, टू गिव यू जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस रिएक्शन में अगर हम जिंक ऑक्साइड को देखें तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है? इट इज लूजिंग एन ऑक्सीजन एटम. यहां पर देखो, ये एक ऑक्सीजन एटम था जिंक ऑक्साइड के पास और फाइनल प्रोडक्ट में दिस ऑक्सीजन इज नो लॉन्गर देयर. सो जिंक ऑक्साइड has lost an oxygen atom. So therefore we say zinc oxide is getting reduced. What is happening to zinc oxide?
इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखो कि जो रिएक्टेंट है वो ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। लॉट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक ऑफ सेइंग जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या कहते हैं? जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अरे भाई, जब जिंक रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो जिंक रिड्यूस कैसे हो सकता है? व्हाट कैन गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड आर द रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं? जिंक ऑक्साइड और कार्बन, राइट? तो इन दोनों में से कोई रिड्यूस हो रहा होगा या ऑक्सीडाइज होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है वो रिड्यूस होगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो ऑक्सीडाइज होगा। ओके, सो इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर है? ओके, अब आप लोगों में से जो थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं वो सोच रहे होंगे कि सर कार्बन तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, राइट? तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट ये वाला एस्पेक्ट में भी टच करूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। तो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स लुक एट रिडॉक्स रिएक्शन नाउ। हमें रिडक्शन क्लियर है, हमें ऑक्सीडेशन क्लियर है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब रिडॉक्स रिएक्शन का वर्ड देखोगे, इट इज मेड अप ऑफ रेड which has come from reduction and ox which has come from oxidation. So basically reactions which involve both oxidation and reduction are called redox reactions. एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, so we call those kind of reactions as redox reactions. Again, previous example, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। नाउ हमने जिंक ऑक्साइड डिस्कस किया था कि इट इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो क्लियर इतना? नाउ लेट्स फोकस ऑन कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ क्या हो रहा है? कार्बन इज एक्चुअली गेनिंग ऑक्सीजन। भाई, कार्बन ऑक्सीजन गेन करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ ना, राइट? कार्बन हैज गेन्ड ऑक्सीजन टू फॉर्म carbon dioxide, so which means carbon is getting oxidized. तो सेम रिएक्शन में एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है जो कि जिंक ऑक्साइड है, और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है जो कि कार्बन है। सो बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन वन सिंगल रिएक्शन। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ redox reaction. Let's look at some more examples. अब एक रिएक्शन दे रहा हूं and you need to identify the substance which is getting oxidized and reduced. Obviously it's a redox reaction क्योंकि मैं आपको दोनों तरह के सब्सटेंस पता करने के लिए बोल रहा हूं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है? So I will give you the reaction. You take few seconds to identify the substance which is getting oxidized and reduced, and then we will discuss it. So here is the reaction. फटाफट आप एनालाइज करो इस रिएक्शन को and tell me what is getting oxidized and what is getting reduced. I will give you 10 seconds for this. Cool. Now let's look at it. How many of you were able to get it correct? If you look at CuO, which is copper oxide, it is getting reduced. What is getting reduced is copper oxide or cupric oxide, not copper. Cupric oxide or copper oxide is losing oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, so it has lost an oxygen atom, so therefore it is getting reduced. Okay, so copper oxide is getting reduced due to loss of oxygen atom. Now let's look at hydrogen. हाइड्रोजन में क्या हो रहा है?
हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करके वाटर फॉर्म कर लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो देयरफॉर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? किसने गेन किया ऑक्सीजन को? हाइड्रोजन ने गेन किया ना, तो देयरफॉर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। और किसने लूज किया ऑक्सीजन को? कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर है? कोई भी रिएक्शन दिया हो तो क्या आप पता कर सकते हो which substance is getting oxidized and which substance is getting reduced? Okay, I will give you some examples or some problems to solve on your own, and hopefully once you go through those questions, this concept of oxidation and reduction will be crystal clear. Now we will look at one final example on oxidation and reduction, and again I am going to give you a chemical reaction and a chemical equation, and you need to identify the substance which is getting oxidized and reduced. अगेन आपके पास 10 सेकंड हो गए और 10 सेकंड में आपको पता करना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. सो हियर इज द रिएक्शन. ओके, ट्राई सॉल्विंग इट. ठीक है. So this problem, some of you might have found it to be a little more difficult than the earlier example. चलो उसके एनालाइज करते हैं. Now if you look at MnO2, MnO2 और मैंगनीज ऑक्साइड is losing oxygen. यहां पर इसके पास ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है. That has been replaced by chlorine. So loss of oxygen is reduction. So clearly MnO2 is getting reduced. जनरली इस तरह के रिएक्शन को हम चेंज इन ऑक्सीडेशन के टर्म्स में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में एनालाइज करते हैं. बट ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यू विल लर्न इन 11th क्लास. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टचिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. फॉर क्लास 10th वी विल stick ourselves only to loss and gain of oxygen or loss and gain of hydrogen. So clearly MnO2 is losing oxygen, so it is getting reduced. So what is getting oxidized? HCl or hydrochloric acid is getting oxidized. What is getting oxidized? HCl or hydrochloric acid. So some of you might be wondering कि सर ये HCl में कहां पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, right? So please recall the second definition of oxidation and reduction which I gave you. And what was that? Oxidation also means loss of hydrogen and reduction means gain of hydrogen. तो इस केस में HCl ने क्या किया? हाइड्रोजन लूज कर दिए. HCl के पास H था, यहां मेरे को केवल क्लोरीन मिल रहा है. हाइड्रोजन हैज गॉन अवे, हाइड्रोजन हैज बीन लॉस्ट. और किसने हाइड्रोजन लूज करा? HCl ने. सो देयरफॉर HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर है? तो इस वाले प्रॉब्लम में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दोनों डेफिनेशन की एप्लीकेशन देखी, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में एज वेल एज गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में. So most of the examples or the questions which you will encounter will be focused or will be based on these two concepts. Clear है? So I assume, I hope that oxidation and reduction concept is clear to you. अब हम देखेंगे इसकी application in daily life. So now we will look at application of oxidation in daily life. Or in other words, we will look at some processes which involve oxidation reaction. Okay? Now we will look at two main applications of oxidation in our daily life, and these two are corrosion and rancidity. ठीक है? तो corrosion और rancidity involves oxidation, और हम इन दो एप्लीकेशन को या इन दो प्रोसेस को अब स्टडी करेंगे. We will start with corrosion.
So what is corrosion? Corrosion is basically an attack on metal by surrounding moisture and air. ठीक है? In corrosion, the metal is generally attacked by moisture and air, gases present in air like carbon dioxide, oxygen, etc. And it results in formation of a new substance. And this process is known as corrosion. And corrosion usually destroys the metal. कभी आपने देखा है लोहे की चीज जो बारिश में रह जाती है, गेट हुए लोहे के या कोई और चीज हुई, तो अगर उसके ऊपर हम प्रॉपरली पेंट या ऑयलिंग करके ना रखें तो थोड़े दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो क्रैक करने लग जाता है, उसमें छेद होने लग जाते हैं, वो खराब होने लग जाता है. सो दैट इज बेसिकली करोशन. सो करोशन इज अटैक ऑन मेटल बाय सराउंडिंग मॉइस्चर एंड एयर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. एंड करोशन यूजुअली डिस्ट्रॉयज द मेटल. ठीक है? और हम 3 मेटल्स के करोजन स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड करोजन ऑफ कॉपर, and third is corrosion of silver. Okay? So let's start with rusting of iron. Now when iron comes in contact with moist air, अगर लोहा moist air के contact में आता है तो it gets coated with a reddish brown layer of hydrated ferric oxide. एक उसके ऊपर reddish कलर की, reddish brown कलर की लेयर बन जाती है. और वो लेयर किस केमिकल की बनी होती है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe2O3.XH2O. ये आपके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है. एंड दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज रस्ट. ठीक है? तो कोई आपसे पूछता है रस्ट क्या है, तो आंसर है रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ठीक? So when iron comes in contact with moist air, it gets coated with a reddish brown layer of hydrated ferric oxide called rust, and this is known as rusting of iron. और हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन से बहुत नुकसान होता है. ब्रिजेस हो, कार्स हो, गेट्स हो, कोई भी आर्टिकल्स हो, अगर हम प्रॉपर केयर ना करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन से वो खराब होते हैं. नेक्स्ट लुक एट करोजन ऑफ कॉपर. ये इतना कॉमनली आपने नहीं देखा होगा बिकॉज आजकल कॉपर वेसल्स और कॉपर आर्टिकल्स इतना यूज में नहीं आते हैं. नॉट टिपिकली व्हेन अ कॉपर आर्टिकल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, कॉपर आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. कॉपर आर्टिकल के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है और वो कोटिंग होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की. ठीक है? एंड दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो कॉपर मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ग्रीन कोटिंग अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है एंड दैट ग्रीन कोटिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो कई जगह स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में आप देखोगे बहुत सारी कॉपर की स्टैच्यूज बनी हुई हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन यूएसए. So that has turned green, or so that green color is due to the formation of basic copper carbonate. Again an example of corrosion. Corrosion of silver, ये बहुत कॉमन है, सब आपने घरों में देखा होगा कि जो हमारे सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर का ग्लास हुआ या कटोरी, चम्मच या नेकलेस, कोई भी चीज हुई, कुछ दिनों बाद काली पड़ जाती है. Why? Due to corrosion. So silver articles turn black on coming in contact with air, and this black color is due to formation of silver sulfide. Clear है? तो turning of silver articles to black due to formation of silver sulfide is known as corrosion of silver. तो ये 3 एग्जाम्पल हमको देखने थे corrosion of silver में. और तीनों एग्जाम्पल के अंदर जो सब्सटेंस है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके? सो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ वी विल लुक एट रेंसिडिटी.
ना जो हमारा खाना होता है उसमें ऑयल होता है, उसमें जनरली फैट होता है. फैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ घी, बटर. तो दीज फैट्स एंड ऑयल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी भाई? एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, ठीक है. तो अगर हम खाने को खुले में रखेंगे तो जो उसके अंदर ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट डेवलप्स फाउल स्मेल. फाउल स्मेल यानी गंदी सी स्मेल आने लगती है, एंड बैड टेस्ट, और उसका स्वाद या टेस्ट खराब हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. ओके, समझ में आ गया रैंसिडिटी क्या है? Fats and oil present in food are oxidized by air, and as a result of which they develop foul smell and bad taste. This is called rancidity. जो ऑयल और फैट आपके खाने में प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं बाय एयर ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट, जिसके कारण खाने से बदबू आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि रैंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं. हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी? सो दिस इज द बिग क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी. लेट्स लुक एट इट. नाउ आई विल डिस्कस एन एग्जाम्पल which most of you are very familiar with, or rather I should say most of you have observed it many a times. आप सब ने ये फिनोमिना देखा है, आप सब ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, बट आई डाउट कि इफ एनी वन ऑफ यू हैव एवर थॉट ऑफ एनालाइजिंग द रीजन बिहाइंड इट, या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है. आप सब लोग चिप्स और पोटैटो वेफर्स खाते हो, लेस, कुरकुरे वगैरह वगैरह वगैरह. बट हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर थॉट व्हाई पैक्स ऑफ योर फेवरेट चिप्स सो ब्लोटेड? उनके जो पैकेट रहते हैं वो इतने फूले हुए क्यों रहते हैं? आप हमेशा बोलते हो उसमें हवा भरी रहती है. सो व्हाई आर दोज पैकेट्स सो ब्लोटेड? राइट? तो सबने ऑब्जर्व किया है. रीजन कभी किसी ने सोचा है? लेट्स डिस्कस द रीजन बिहाइंड इट. नाउ द रीजन व्हाई पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस. ओके, लेट मी फर्स्ट से कि ये जो पैकेट्स ऑफ चिप्स हैं ये ब्लोटेड हैं या फूले हुए इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, एयर नहीं भरी है. What is filled in it is nitrogen gas. So why are these packets filled with nitrogen gas? Now the packets of chips are filled with nitrogen gas because first nitrogen gas is very unreactive. तो अगर नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव है तो किसी भी सब्सटेंस जिससे चिप्स बनी हुई है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी. यही चाहते हैं ना कि जो हमारा खाना है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, किसी चीज से रिएक्ट ना करे. तो फर्स्ट कि नाइट्रोजन गैस इज वेरी अनरिएक्टिव, एंड सेकेंडली बाय पैकिंग द फूड विथ नाइट्रोजन इट प्रिवेंट्स द फूड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के साथ अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो फैट्स एंड ऑयल्स विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ फैट्स एंड ऑयल्स do not get oxidized, it means rancidity नहीं होगी, यानी वो चिप्स खराब नहीं होंगे. Right? So packets of chips are filled with nitrogen gas, as nitrogen gas is very unreactive and prevents packed food to come in contact with oxygen, and this prevents rancidity. ठीक है? तो अगर कोई पैकेट पिचका हुआ है यानी डिफ्लेट हो गया, उसमें से सारी नाइट्रोजन गैस निकल गई है, तो ऐसे पैकेट को हमें खरीदना चाहिए? नो, नेवर. क्योंकि चांसेस कि उसके अंदर जो चीज है वो खराब हो चुकी है बहुत ज्यादा होगी. भाई अगर नाइट्रोजन गैस निकल गई है इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ छेद है, ठीक है ना. अब वो छेद से अगर नाइट्रोजन गैस निकली है तो ऑक्सीजन गैस भी अंदर घुसी होगी,
और ऑक्सीजन गैस अंदर गई है तो उसने ऑक्सीडाइज किया होगा फूड को, और अगर ये पैकेट इसी तरीके से कई दिनों से रखा होगा तो ऑक्सीडेशन के कारण फूड खराब हो गया होगा, उसमें स्मेल आने लग गई होगी, उसका टेस्ट खराब हो गया होगा. सो नेवर बाय पैकेट्स विच हैव गॉट डिफ्लेटेड. Now, what are the other ways of preventing rancidity? Now, 3 other commonly used ways of preventing rancidity are: first, refrigeration. खाने को फ्रिज में रखो. यही करते हैं आपके घर में मम्मी लोग. जो खाना बच जाता है या जो सब्जियां रहती हैं, जो खाना बच जाता है, उसको क्या करती हैं? फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में रखने से क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन का जो रेट ऑफ स्पीड होगी ऑक्सीडेशन की वो भी कम हो जाएगी. तो खाना ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा या जल्दी खराब नहीं होगा. दूसरा, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. अगेन रीज़न क्या है? अगर हमने एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक कर दिया तो हम ऑक्सीजन को फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करने से रोक रहे हैं. बट फुल प्रूफ तरीका नहीं है, क्योंकि जब पैक कर रहे हो, जब एयर टाइट कंटेनर में डाल रहे हो, तो कुछ ऑक्सीजन तो पहले से ही उसके अंदर है. बट क्या होगा कि जो खाना 2 दिन में खराब होना हो सकता है वो 10 दिन में खराब हो. एंड थर्ड इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आर केमिकल्स विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन. ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन होने नहीं देते. तो कुछ केमिकल्स को हम पैक फूड में ऐड कर देते हैं कि इसके कारण ऑक्सीडेशन ना हो और खाना जल्दी खराब ना हो. ठीक है. सो दीज आर सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग rancidity. रेफ्रिजरेशन, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, एंड पैकिंग पैक्ड फूड विथ नाइट्रोजन गैस. क्लियर है? सो दीज आर सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग rancidity. And with this, I have completed your classification of chemical reactions and their application, which are part of your class 10th CBSE course. Hopefully you have enjoyed this series of lecture. I will come out with one more lecture in which we will discuss some problems or some application based problems related to this particular topic. Okay? So I'll advise you to go through these lectures once more. काफ़ी easy topic है. Concentrate करके समझोगे बहुत easily समझ में आ जाएगा. It's important that all the reactions which we have covered in this chapter, and there are around 8 to 9 of them, those reactions you know by heart. उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या कलर चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. कीप एट होम एंड कीप सेफ. थैंक यू.